پاک نام میں آپ سب کی سلامتی۔ عزیزو، ہم خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج ایک بار پھر خدا کی حضوری میں موجود ہو کر اس کی تمجید کرتے ہیں جو سب عزتوں، تمجید اور بزرگی کے لائق ہے۔ اور کلام اقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بات میں اپنے خداوند خدا کی شکر گزاری کرو۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں جیسے بھی جس سال کے اندر بھی خدا ہمیں اپنے کلام کے لیے، پرستش کے لیے ہمارے ہاتھوں کو، سازوں وازوں کو، ہماری زندگیوں کو استعمال کرتا ہے، تو بے شک یہ خداوند کا بڑا گہرا فضل ہے، خداوند کی بڑی گہری برکت ہے جو وہ ہم سے لیتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، کلام اقدس کو سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کل ہم نے کیا سیکھا ہے۔ میرے خیال میں سب کو یاد ہی ہوگا۔ جی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج میرا ایمان ہے کہ یہ بھی یاد رہے گا، ہم اسی کے دوسرے حصہ میں بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کل ہم نے خدا کے کلام اقدس میں سے پیدائش کی کتاب کے اندر سے سیکھا، اور دوسرے باب کے اندر سے ہم نے جانا، اور اس کے بعد خطوط کے اندر میں سے بھی حوالہ جات کو جانا کہ کیسے خدا ہوا کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ آپ نے اپنے شوہروں، بھائیوں، جو بھی آپ کے سربراہ ہیں، گھر کے اندر مرد ہیں، ان کے تابع رہنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے، اور ان سے بد کلامی یا حکم چلانا یا تلخی یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر ہمیں خدا نے یہ سکھایا کہ عورت جو ہے پہلے مرد بنایا گیا اور عورت اس کے بعد بنائی گئی ہے۔ مرد کو خدا کی شکل پر بنایا گیا، لیکن عورت کو آدم کے اندر سے ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت لے کر بنایا گیا۔ آدم خدا کا جلال ہے، لیکن مرد کا جلال عورت ہے۔ عورت آدم کے لیے بنائی گئی ہے، آدم عورت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ سب باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ آج ہم پھر سے آگے بڑھتے ہیں اس حصہ کو لے کر۔ عیسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، 5ویں باب کی 22 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ جی یہاں سے پڑھتے ہیں اوپر اسکرین سے، 5 باب 22 آیت۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر پھر وہ بات آتی ہے جیسے عدن کے اندر ہوا کو یہ کہا گیا، اور یہاں پر بھی خدا کا بندہ کہتا ہے جو شادی شدہ بہنیں ہیں، جو بیویاں ہیں، ان سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندہ کے وسیلہ سے یہ بات بیان کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کل یہ باتیں سیکھی ہیں اور ہمیں ملی ہیں کہ عورتوں کو ان مردوں کے جو ان کے سربراہ ہیں ان کے تابع رہنا ہے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ کیسے تابع رہنا ہے؟ جیسے خداوند کی۔ اب یہاں پر سیم بات آتی ہے جو ہم نے کل سیکھی ہے خدا کے حضوری سے، اور وہاں پر لکھا ہوا تھا عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے۔ پہلے تموتھیوس کے 2 باب کے اندر 11 سے 15، اور اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے اور مرد پر حکم چلائے۔ یہاں پر بھی سیم بات ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اور میرے عزیزو، میں یہ بات خدا میرے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ ہم
अक्सर औकात मर्द के लिए कहते हैं कि आदमी, इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, वो आदमी। आदमी उसको क्यों कहा जाता है? जैसे जी शाबाश, आदमी का लफ्ज को गौर से देखें, आदम फिर छोटी ये आगे लगती है, आदमी आदम से निकला हुआ, आदम का साया, आदम ही उसका सारी शक्ल जो है इसके अंदर यानी आगे ट्रांसफर हो चुका है। आदमी, आदमी यानी कि आदम का। अब मेरे जीजो, कलाम अक़दस में हमने बड़ी जबरदस्त बातों को सीखा और हमने जाना कि बहुत सारी ऐसे बहनें, ऐसे औरतें हैं जो हमारे मसीही कम्युनिटी के अंदर पाई जाती हैं, जो अपने शोहरों को दबाने की कोशिश करती हैं, उनके आगे बोलने की कोशिश करती हैं और उनको हमेशा उन पर हुक्म चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन कलाम अक़दस ये कहता है कि मर्द जो है वो खुदा का जलाल है, औरत उस पर हुक्म ना चलाए और बात ऐसी ना करे, उसके आगे बोले ना बल्कि उससे सीखे। आज हम सीखेंगे, कल जब हमने देखा कि ऐसी बहनें हैं, तो यहाँ पर इमसाल की किताब के अंदर 11वें बाब की 22 आयत के अंदर खुदा का बंदा हिकमत का बादशाह ये बयान करता है, लिखा हुआ है, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में सोने की नथ है। लिखा क्या है? बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में सोने की नथ है। अब सूअर जो है वो एक जानवर है, सूअर जो है वो एक जानवर है। हिकमत का बादशाह ये बयान करता है, जो बेतमीज औरत है, जो बेलगाम औरत है, जो बोलती है और आगे से लड़ाई डालती है और जो दबाती है और अपने शोहर को हुकूमत करने की कोशिश करती है, हुक्म चलाने की कोशिश करती है और उसको बुरा भला बोलने की कोशिश करती है, वो किसकी मानद है? यहाँ पर लिखा बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में सोने की मानद। बेशक खुदा ने उसको जितना मर्जी खूबसूरत बनाया, वो जितनी मर्जी खुशनुमा नजर आती है, वो अपने आप को जितना मर्जी खूबसूरत समझे, अक्लमंद समझे, दयानतदार समझे, अगर वो बदतमीज है, अगर उसकी बेलगाम जुबान है, अगर वो अच्छा नहीं बोलती, अगर वो तमीज नहीं रखती, तो वो सूअर के नाक में सोने की नथ के बराबर है। अब सोना कितना कीमती होता है, सोने की कदर कितनी कीमती है, कितना कीमती है। आज सोने के चक्कर में आज लोग डाके डालते हैं, कत्ल कर देते हैं, चोरी करते हैं और सोना इतना महंगा हो चुका है, इंसान सोचता रहता है इतनी कदर है सोने की। और खुदा का कलाम हिकमत का बादशाह कहता है कि अगर वो ऐसी औरत है तो वो सोना जिसकी इतनी कदर है वो ऐसे जानवर की नाक के अंदर नथ के तौर पर डाला गया जिसको लोग नापाक समझते हैं। नापाक जानवर के नाक में वो नथ की मानद है, वो सोना जो अपने आप को खूबसूरत समझती है, खुशनुमा समझती है और अक्लमंद समझती है, लेकिन है बदतमीज, वो सूअर की नाक में सोने की नथ के बराबर। नापाक जानवर के नाक में सोने की नथ डालना, कभी देखा ऐसा हुआ कि जानवर के नथ के तौर पर हमने उसके सोने की नथ पहनाई हो? गधों को, बैलों को, बकरियों को, जानवरों को सोने की किसी ने संगलियां या पटे या नथें बनाकर डाली हो, लेकिन खुदा का बंदा कहता है वो ऐसी है। अगर यहां पर लिखा हुआ है बेतमीज, मैं मेरे जीजो यहां पर बयान ये करना चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं, बल्कि खुदा का कलाम आपको बताना चाहता हूं। हमारे माशरे के अंदर, हमारे इसी बड़ियाना के अंदर मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं, आज भी वो है, जो इतनी यहां पर जैसे लिखा हुआ बेतमीज
ऐसी उसकी ज़बान थी, वो मोहल्ले के अंदर किसी को कुछ नहीं समझती थी, हर किसी के साथ अपनी लगाम बेलगाम ज़ुबान को चलाती थी, हर किसी के सामने बोलती थी। अगर उसे कोई बड़ा कोई बुजुर्ग समझाने को भी आता था तो वो उससे भी बेइज्जत कर देती थी, हर किसी के सामने ऊंची ऊंची बोलती थी, पूरा मोहल्ला उसकी आवाज सुनता था। और जब उसका शोहर उसको पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश करता कि छोड़ दो, लड़ाई बंद कर दो, बदतमीजी बंद कर दो, गालियां बंद कर दो, तो वो उसे भी बुरा भला कह देती थी, उसको भी गालियां निकाल देती थी। हुआ क्या, आज वो जिंदा है, लेकिन उसका हाल ऐसा हो चुका है कि वो खुद भी अपने हाल को देखकर परेशान होती होगी। उसकी कंडीशन ऐसी है कि खुदा उसको फजल दे, खुदा उसको सलामती दे, बरकत दे, शिफायाबी दे और उसके घराने को भी बचाए जो मसले बने हुए हैं। लेकिन दर हकीकत वजह क्या हुई है कि जब हम ऐसी बातें करते हैं, हम मसीह, जब हमें कलाम मिला, जब हमें कलाम समझाता है, जब हमें कलाम तलकीन करता है, जब हमें तनबीह करता है और हम सुनते सुनाते हुए भी उलट चलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो फिर खुदा अपने कलाम का, सुने हुए कलाम का और जो हमें सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, उसका हिसाब लेता है। तो कितनी उसकी कदर रह गई है। कहते रहे लोग, वो अपने बारे में कहती रहे, उसके रिश्तेदार कहते रहे बड़ी खूबसूरत है, कहते रहे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो उस बराबर है जो सूअर की नाक में नथ डाली गई है। उसकी कोई कदर नहीं है खुदा की। कलाम की अंदर, कलाम की नजर में, खुदा की नजर में उसकी कोई कदर नहीं है। जो मर्जी अपने आप को समझे, अगर वो बेतमीज है। आज मेरे जीदो, हमारी बहनें, हमारी माएं और हमारी बेटियां, क्यों ऐसा हो रहा है? आज सिखाया नहीं जाता। होता क्या है, जब हम बेटियों की, बहनों की शादी कर देते और अगर उनको तलकीन नहीं की होती, अगर उनको समझाया नहीं जाता, तो फिर वो जब अपने घरों में अंदर जाती हैं तो वहां पर जाकर वो ना तो सब्र तहम्मुल करती हैं और ना अपनी ज़ुबानों को बंद करती हैं। फिर इख्तलाफात बढ़ते हैं, फिर झगड़े बढ़ते हैं, फिर फसाद बढ़ते हैं, फिर तलाकों पर बात आ जाती है, फिर छोड़ने छुड़ाने पर बात आ जाती है। लेकिन खुदा के कलाम ने हमें कल भी ये सिखाया कि औरत को सब्र तहम्मुल के साथ सुनकर, समझकर, ताबे रहकर, चुप रहकर समझना है कि खुदा मुझे क्या तलकीन करता है। आज यहां पर सीखें मेरे जीजो। जब पैदाइश की किताब के 3 बाब को पढ़ते हैं, जब गुनाह हुआ, जब गलती हो गई, तो फिर खुदा जब नाराज हुआ तो खुदा ने सजाओं को जारी किया। सांप से भी कह दिया पहले होंगे उसके हाथ पांव, वो चलता फिरता होगा। लेकिन जब खुदा ने कह दिया था कि आज के बाद तू पेट के बाल चलेगा, जमीन की खाक चाटेगा, तो फिर आज तक, बल्कि रहती जमीन तक वो अपने पेट के बाल ही चलेगा और जमीन की खाक ही चाटेगा और इंसान की एड़ी पर काटेगा और इंसान उसके सर को कुचलेगा। ये खुदा का अहद मान चुका है, सजा मिल चुकी है। जब भी कभी सांप मिलता, लोग कहते हैं इन्हें अंजनी जे मरना है, सिर फेवो फिर मरेगा। वजह क्या है? खुदा के कलाम में लिख चुका, खुदा ने वादा कर दिया हुआ है, तू इंसान की एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। होता है ऐसा, जब तक हम उसके सर को कुचलते नहीं, हम मरते ही नहीं। खुदा ने फरमा दिया हुआ, ये सजा मिली। औरत को कह दिया आज के बाद जब भी तेरे औलाद होगी, तू बच्चे जनेगी, तेरी दर्द को मैं इतना पढ़ कर देख ले, इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, बर्दाश्त से बाहर है। आज खुदा का वादा रहती दुनिया तक पूरा होगा, क्योंकि वजह क्या हुई है? गुनाह हो गया, खुदा की नाफरमानी हो गई है। और मर्द को सजा इसलिए मिली, उसने ये खुदा के कलाम में लिखा, खुदा ने कहा क्योंकि तुझे ये सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, इसलिए, क्योंकि मैंने तुझे फरमाया था कि ऐसे चलना, तूने मेरी बात को नहीं माना, उसकी बात को माना। अब तुझे ये सजा इसलिए मिल रही है, तू खून पसीना बहाएगा, मरते दम तक मेहनत मशक्कत करेगा,
खून पसीना बहाएगा और उसके बाद रोटी खाएगा, होता रहेगा क़यामत तक ऐसा औरत है। मेरे जीजो वजह क्या? एक वही गलती। और फिर मेरे जीजो खुदा ने औरत से कहा कि तू एक काम पहला तो होगा कि मैं तेरे दर्द हमल को इतना बढ़ा दूंगा तो दर्द के साथ औलाद पैदा करेगी। और फिर तीसरे नंबर पर कहा कि फिर भी जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी तू बातें कर ले, जो मर्जी समझ ले, फिर भी तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी, मोहताज तू उसी की रहेगी। फिर लिखा है, चौथी बात लिखी हुई है, और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। कितनी बड़ी सजा मिल गई है, सांप को भी मिल गई है, औरत को भी मिल गई है, आदम को भी, मर्द को भी मिल गई है। खुदा ने ठहरा दिया, खुदा ने कानून मुकर्रर कर दिया कि जब तक तू रहेगी, जब तक तू रहेगी, उसी की तेरी रगबत, तेरी जरूरतें और तेरे सारे कामकाज उसी की वजह से होंगे और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, पढ़कर देख लें। मेरे जीजो यहां पर 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, आदम को कहा गया क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी इसलिए तो आज के बाद खून पसीने की रोटी खाएगा। आज मेरे जीजो जब हमने कल सीखा तो कल हमें बताया गया कि औरत निजात पा सकती है औलाद हासिल करने के वसीला से, कलाम पर ईमान रखने, यीशु मसीह पर ईमान रखने और मोहब्बत रखकर और परहेजगारी करके और रास्तबाज बन के आज अपनी निजात की विरासत को हासिल कर सकती। मौका दे दिया हुआ खुदा ने। जो दूरी उस दौर के अंदर, अदन के अंदर गुनाह की वजह से आदम, हवा और खुदा के दरमियान पड़ गई थी, खुदा ने खुला मौका दे दिया। हवा अपने आप को ठीक करके, मौका हासिल करके, मेरी हजूरी की निजात हासिल करके, अब तेरे पास भी मौका है, तू भी बादशाही को हासिल कर सकती है। आदम के पास भी मौका है, वो भी दोबारा बादशाही की जिंदगी को हासिल कर सकता है। अक्लमंद औरत जो है वो खुदा के कलाम को फॉलो करके, यीशु मसीह पर ईमान रखकर, निजात पाकर, अपने घराने को बेहतर तरीके से चलाकर, मशवरा करके, साथ चल के, पूछताछ करके, सीखने के बाद, फिर अमल करके चलने के बाद खुदा की बादशाही की वारिस बन सकती है। मेरे जीजो बहुत सारी ऐसी माएँ, बहनें, बेटियां जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने अपनी अकल से, अपनी दानाई से, अपनी हिकमत से और खुदा की रास्तबाजी में अपनी जिंदगी गुजार कर अपने घरानों को ऐसा जबरदस्त वेल सेट किया हुआ है। उनकी औलाद, उनके बहन भाई, उनके सारे खानदान के लोग उनकी वजह से आज बड़े बड़े अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपनी बुजुर्गा माँ जी के लिए भी। मैं जानता हूं बहुत साल पहले हमारे बुजुर्ग हमसे जुदा हो चुके हैं और अपने शोहर के गैर मौजूदगी के अंदर जब वो खुदामंद में सो चुके हैं और अपनी औलाद की तरबियत करना, उनको पालना पोसना और उनको हर तरीके से हर तरह की सहूलत देना, खुद मेहनत मशक्कत करके, दुनिया से लड़कर, दुनिया का मुकाबला करके, अपने बच्चों को सारे मामलात में अच्छे तरीके से डालना और उनकी शादियों के मामलात, सारे मामलों को हैंडल करना। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ऐसी औरतें भी खुदा ने अपने लोगों को दी हुई हैं। सीखने के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम उनसे सीखें। मेरे जीजो, बहनें जो हैं जिनकी शादी हो जाती हैं, जो बहनें, हमारी बहनें शादी करके अपने ससुराल में चली जाती हैं और जिन बहनों को हम ब्याह कर यहाँ पर ले आ जाते हैं, अपने हमारे घरों में आती हैं, वो अगर अपनी सासों से, अपनी जो माँ उनको ससुराल में बख्शी गई है, उससे अच्छा सलूक नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं रखती, उसके साथ अच्छे तरीके से चलती नहीं है, अपनी जिंदगी सही तरीके से नहीं चलाती, तो याद रखे कि आज अगर वो बीवी है, आज अगर वो बहू है, तो कल एक जमाना आएगा कि उससे भी सास बनना है। फिर वो मौका आ जाएगा, जैसा सलूक वो अपनी सास से करेगी उसको वैसा ही मिलेगा।
कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। सोच लें हमने अपनी सास से कैसा सलूक करना है, क्योंकि कल को हमने भी सास बनना। सोचें कि क्या अगर मैं बुरा चल रही हूं तो कल को जो मेरी बहू आएगी वो भी मेरे साथ ऐसी करेगी। पंजाबी की एक मिसाल है, लोग कहते ने एक बंदा अपने प्यो ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। जैसा करना वैसा भरना पड़ जाएगा। आज की बीवी आज की बहू कल सास बनेगी। मेरे अजीजों, सीखना ये है, रूत की किताब को पढ़ें। बहनों ने इसलिए संडे को इसमें पढ़ा है। रूत ने क्या किया, उर्फा ने, उनकी माँ ने, उनकी सास ने कहा कि जाओ तुम, अब तुम्हारे शोर मार चुके हैं, तुम जाकर अपने अपने ससुराल के, अपने अपने मैके के घरों में चली जाओ और अपनी जिंदगी बसर करो। और उर्फा ने अपनी सास को चूमा और उससे मिली, सलाम दुआ की और चली गई। लेकिन रूत कहती है कि माँ जी मैं नहीं जाऊंगी। अब जहां पर तू रहेगी वहां पर मैं रहूंगी, जहां पर तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी। जहां तू रहेगी, जिस खुदा की तू परस्तिश करती है, उसी खुदा की परस्तिश मैं भी करूंगी। जहां पर तू मरेगी वहां पर मैं भी मरूंगी। जहां पर तू रहेगी, जिन लोगों के अंदर तू जिंदगी बसर करेगी, मैं भी करूंगी। ये बड़ा नमूना, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल उसने दे दिया हमारी बहनों को जो बहुएं और बीवियां हैं। आज सोचें, ख्याल करें कि हम किस तरह से चल रहे हैं और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज हमारे ऊपर वक्त है, हम बहुएं हैं और कल आपके ऊपर ये टाइम आ जाएगा, आपको सास बनना पड़ेगा। फिर आपको सास बनकर एहसास होगा कि मैंने कैसे बिहेव किया था। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, सीखने का बड़ा जबरदस्त मौका है। शायद ये चीजें आपको पहले नहीं मिली, लेकिन आज खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है। रूत ने बड़ा जबरदस्त नमूना यहां पर बयान किया। और मेरे अजीजों, हमें भी ऐसे ही खुदा के कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपने रिश्तों के साथ। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी शादी यहाँ पर हुई है तो आपका शोहर भी है, आपके देवर भी हैं, आपके भाई हैं, बहनें हैं, माँ जी या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। जिस फैमिली को आप छोड़कर आए हैं उनसे आपको इतनी मोहब्बत है, वैसी ही सेम फैमिली यहाँ पर है, उनको भी उसी मानद मोहब्बत करें तो कल आपको ऐसा ही सिला मिलेगा। आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बहुएं ऐसा ही प्यार आपको देंगी कल को जो आप आज इस घराने में देंगे। आमीन। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है, लोग मिसाल भी देते हैं, कहते हैं जो किसी और के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें एक दिन गिरता है। आज सीखें, आप जितनी यहाँ पर मौजूद हैं, बहनें, बहुएं, बेटियां, जो बेटियां अभी सीख रही हैं, जिनको कल को अपने घरों में जाना है, जिन्होंने कल अपने घरों में जाना है, वो आज से सीख लें। हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम खुदा के कलाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम उसके रास्तबाज हैं, हम उसके ईमानदार हैं। आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, माएँ हैं, बहनें, बेटियां हैं, सब आप ईमानदार हैं, आप रास्तबाज हैं। आपके लिए जरूरी है कि जो आपको खुदा के कलाम के मुताबिक बताया जाता है उस पर चलना आपका फर्ज बन चुका है। अगर नहीं चलते तो फिर हमने भी पीछे देखा, मैंने आपको सुनाई है बहन की तमसील। आज सीखें, आप सब ईमानदार हैं, आप सब रास्तबाज हैं। मेरे अजीजों, आप बहनें जब भी मिलती हैं आपस में जब मिलकर बैठती हैं, बात करती हैं, जब आपको इबादत करने का मौका मिलता है तो आपस में ये मशवरा किया करें कि मैं अपने घर को कैसे बेहतर चला सकती हूँ। एक दूसरे से बातचीत किया करें, काउंसलिंग होगी आपकी, एक दूसरे की पूछे एक दूसरे से कि मैं अपने घर को कैसे चला सकती हूँ बेहतर, अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कैसे कर सकती हूँ, अपने शोहर के साथ कैसे अच्छा रवैया रख सकती हूँ, कैसे मोहब्बत से चल सकती हूँ, कैसे ताबेदारी कर सकती हूँ।
और अपने घर को बेहतरीन बनाने के लिए कैसे अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैसे रवादारी से इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने बाप, अपने ससुर, अपनी सास, अपनी माँ से कैसे अच्छा तल्लुक रख सकती हूँ, कैसे प्यार मोहब्बत से चल सकती हूँ। आपस में जरूर मशवरा करें। वजह क्या होती है, मैं आपको एक तमसील सुनाना चाहता हूँ। असल वजह क्या है आपको ये समझाने की कि आपस में बैठें तो फिर इन बारों में, इस सारे मशवरों पर बातचीत किया करें। एक दफा एक भाई था और उसकी एक बीवी थी। वह जब वो एक दिन अपने घर में आया, बड़ा परेशान था, पसीनों पसीनी हुआ था, और उसने पूछा कि आज क्या मसला है आपको, इतनी बुरी हालत है, क्या वजह है? कहता मुझे पानी पिला, मैं तसल्ली से तुझे बात बताऊंगा। थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा सा पानी पीकर बैठा तो उसने कहा मैं तुझे एक शर्त पर ये बात बताऊंगा। उसने कहा ठीक है, जो भी शर्त है मैं मानूंगी। उसने कहा कि अगर मैं तुझे ये बात बता रहा हूं तो पूरी जिंदगी तूने ये बात किसी को नहीं बतानी। अगर बताओगी तो समझ लेना कि तेरा तल्लुक खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे पकड़ा जाएगा और तू भी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं रहूंगा तो तू क्या करेगी? उसने कहा ठीक है, मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। उसने कहा कि मैंने किसी भाई से लेन देन करना था, मेरा झगड़ा हुआ, इतना बढ़ गया कि मुझसे वो कत्ल हो गया, और बारिश बहुत हो रही थी, बारिश के बड़े बड़े कतरे थे, बड़े बड़े पानी के बुलबुले बन रहे थे, और उसने भाई ने मरते मरते कहा था कि यही बारिश, यही पानी के बुलबुले मेरी गवाही देंगे। तो तेरी मेहरबानी है कि किसी से ये बात न कहना, तो मेरी राजदार है, मेरी मददगार है, अब ये बात किसी से न कहना। उसने कहा ठीक है जी, मैं नहीं कहता। 2 साल गुजर गए, वो बूढ़े होने के करीब आ गए। बहुत सालों के बाद वो बहन अपनी सहेलियों के साथ बैठी है, और उसको जब वो बैठी हुई है तो बाहर बारिश हो रही है, और उसको वो बारिश देखकर, वो बुलबुले देखकर वो बात याद आ गई। वो कहती है बहनों सहेलियों, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेकिन तेरी मेहरबानी है अब कल किसी ना दसे, किसी ना करो, मेरिया भैन हो तो तेरी मेहरबानी भैन बन करे, वादा तोड़ो ना, किसी ना दसे। मैं कहा है केड़ी गल, तू भैन क्या है सानू, इस तो पीछे कोई गल है? नहीं जाएगी, टेंशन ना लै तू दस। मैं क्या फिर मैं भैन समझ के दस लगी, तेरी मेहरबानी मेरी जिंदगी का मसला, मेरा तो मेरे शोहर की जिंदगी का मसला, किस नूं दस्यो। मैं कहा ठीक है जी। नहीं, मैं कहा जी इंज इंज ऐही बारिश हो रही, ऐही बुलबुले सन, ते इंज मेरे शोहर को यह मामला हो गया। उन्हें कहा ठीक है, नहीं दसते, चुप चुपीते। वो चली गई। उन्हें कहा ठीक है, तू तो दस गई है, हुण पिंडों बाहर नहीं जाएगी गल। करते करते बात निकल गई, और जब पता चला, जब बात फैल गई, तो जब पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन की, उससे पूछा गीछा और उसको थोड़ी सी डांट डपट की, उसको मारा, तो उसने कहा कि हाँ फलानी सन के अंदर फलां एक कत्ल हुआ था, उसका नाम ये था, उसका पता ये था, उसका घर ये था, उसको मैंने मारा, पकड़ा गया। इसको ये बताने का मतलब, ये तो हो गया जो होना था, अच्छा हुआ। आपको बताने का मतलब ये है कि आप जब बैठें तो अपने घर की बेहतरी, अपने घराने को अच्छे तरीके से चलाने के मशवरे, बच्चों को तरबियत देने के मशवरे, और अपने बहन भाइयों, अपने घराने जिसमें आपको खुदा ने भेजा हुआ है, उसके साथ अच्छे तरीके से चलने के लिए आपस में मशवरे किया करें। कैसे करें? जैसे यहाँ पर बताया गया इसमें से, ठीक है? अपनी सोच से नहीं, अपनी सोच से थोड़ा मसला आ जाएगा, इसमें से, ठीक है जी। आमीन। आए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और इन सारी बातों के लिए जो खुदा की ज़रूरी से हमें मिली है, अपनी ज़बानों को खोल कर खुदा की ज़रूरी में शुक्रगुजारी करें, और इन बातों पर अमल करने के लिए खुदा से जोर और कुव्वत मांगें। सब जोर भाइयों की आवाज़ से ज़्यादा बहनों की आवाज़ आनी चाहिए। हालेलुया।